Assalamu alaikum students. Today the next topic is about the consonant ra sound. It's chapter 7, topic 7.3 and page number 59. Okay, today we will talk about how to pronounce the consonant ra sound, right? Yes, basically the consonant ra sound is a post-alveolar approximant. Yes, the sound is known as post-alveolar approximant. An approximant as a type of consonant is rather difficult to describe. Yes, we call the sound raw as an approximant. Why? Because it is not just like a simple consonant, rather it is a very complex consonant. That's why we call it an approximant. Articulation in which articulators approach each other but do not get sufficiently close to each other to produce a complete consonant such as plosive, nasal or fricatives. Yes, ra sound is basically an approximant. That's why, because it's not just like a simple consonant like the other fricatives and the plosive. Rather, if you have closely look on the ra sound, how we pronounce the ra sound, अगर आप अपने face posture को देखते हैं, and ra sound, have a look on the posture of your tongue. आपकी tongue की क्या position बन रही है? Just your tip of tongue, it is about to connect your alveolar ridge. ठीक है, ये आपके अगर फ्रंट टीथ बन रहे हैं, राइट, अगर आपके ये फ्रंट टीथ है, ये आपका alveolar ridge बन रहा है. ठीक है, आप टा और डा साउंड यहाँ पे आके प्रोनाउंस करते हैं, लाइक ये जो लाइनिंग होती है alveolar ridge की, राइट, और ये आपके अबव अपर टीथ हैं. ठीक है, और ये जो मिड में यहाँ पे आके आप अपनी रा साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, राइट. इट इज़ नॉट लाइक द कंप्लीट कॉन्सोनेंट, लाइक कुछ पहले जो होती हैं डेंटल साउंड होती हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं. एलोवेलर रिच जो साउंड होती है टा एंड डा साउंड वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है. ये जो प्लेस है ये इन बिटवीन प्लेस है, लाइक बिटवीन योर अपर टीथ एंड योर एलोवेलर रिच. तो यहाँ पे इन बिटवीन जो आप साउंड क्रिएट करते हो जब आप अपनी टंग को कर्ल बैक करते हो और यहाँ पे आके मिड में जो स्लाइड के थ्रू एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ नोन एज द रा साउंड. दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस स्लाइड कॉन्टैक्ट, because of this slight contact of your tip of the tongue and your in between space between alveolar ridge and your above dental teeth, because of this posture this is known as approximant. क्योंकि ये complete consonant नहीं होता, जो इसकी पोजीशन की वजह से, इसकी वजह से हम इसको approximant कहते हैं, राइट. यस, अगर आप इस सारी डिटेल को देखते हैं, कॉन्सोनेंट विद दिस टंग शेप आर कॉल्ड एज रेट्रोफ्लेक्स. जी, इस पोस्चर के साथ ये जो टंग का पोस्चर आपका स्लाइटली कर्ल बैक का जो एक पोस्चर बन रहा है हमारे पास, और ये कंप्लीट अगर आप रा साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो टिप ऑफ टंग है ये इस जो हमारे पास जो ये स्पेस है इसको कंप्लीट टच नहीं कर रहा. रादर देयर इज़ अ वाइब्रेशन, लाइक देयर इज़ अ वाइब्रेशन बिटवीन बोथ द स्पीच ऑर्गन. लाइक यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन आती है रा साउंड जब हम क्रिएट करते हैं, आप ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं. तो ये वाइब्रेशन, ये जो पोस्चर ऑफ टंग होता है, इस पोस्चर ऑफ टंग को हम क्या कहते हैं? रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं. यू कैन स्टिल क्लियर the sound, you can still remove your confusion while creating this sound like dar 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 dar. like अगर आप consequently आप इस साउंड को मिरर में देखकर आप प्रोनाउंस करते हैं तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टंग की, आपकी माउथ ऑर्गन की क्या पोजीशन होती है स्पीच ऑर्गन में जब आप इस साउंड को प्रोनाउंस करते हैं. Another thing is that we call this ra sound as post-alveolar sound. If we have a look at this position, like ra sound, it's a post-alveolar sound because you call this portion of your upper palate as a ridge, and it is pronounced after the alveolar ridge. That's why it is known as post-alveolar sound. Yes. How do you pronounce this sound? A rather different ra sound is found at the beginning of a syllable. If it preceded by pa, ta and ka, it is then voiceless and fricative. Yes, आप इस साउंड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रा साउंड को अगर रा साउंड यूज़ हो रही है आफ्टर पा, टा एंड का, if you are going to pronounce this ra sound after pa, ta and
का साउंड आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ये साउंड यूज़ हो रही है आफ्टर दीज इनिशियल साउंड। सो उस पोजीशन पे जो साउंड रा साउंड हम यूज़ करते हैं दैट रा साउंड विल बी वॉइसलेस एज एंड स्लाइटली फ्रिकेटिव साउंड होगी, राइट। और आप देख सकते हैं जो हमारी टंग होती है, जो टंग का हमारा पोस्चर होता है, द लिप्स टू बी सॉरी नॉट टंग, लिप्स टू बी स्लाइटली राउंडेड, ठीक है। तो हमारे लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा राउंडेड नहीं होते जैसे वॉ की साउंड में होते हैं, बट इस साउंड में रा की साउंड में हमारे लिप्स की जो पोजीशन होती है वो स्लाइटली राउंड शेप में होते हैं। वन थिंग मोर, अकॉर्डिंग टू द BBC एक्सेंट, यस इट इज़ वेरी इजी टू स्टेट, क्या जी BBC एक्सेंट जो होता है वो साउंड के बारे में कहता है दैट दिस फोनीम ओनली अकर्स बिफोर द वावल। जी आप हर वर्ड में देख सकते हैं ये रा साउंड जो होती है वो बिफोर वावल आप इसको यूज़ करते हैं।